السلام علیکم اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین، امن عالم چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور اس امن عالم چینل کے ذریعے سے قرآن کریم کی روز ایک دو آیتوں کی تشریح ہو رہی ہے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ احزاب حزب سے ہے، یعنی حفظ کے معنی جماعتوں کے ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذی یصلی علیکم، صلی صلاۃ سے ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذی یصلی علیکم، اللہ تعالیٰ تم پر صلاۃ بھیجتا ہے، وملائکتہ، اور ملائکہ، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ نکالے تم کو ظلمت سے نور کی طرف۔ ناظرین، بات سمجھنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذی یصلی علیکم، یعنی اللہ تم پر صلاۃ بھیجتا ہے۔ علیکم سے مراد کون ہے؟ علیکم سے مراد اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کے کہہ رہا ہے کہ یصلی علیکم، میں تم پر صلاۃ بھیجتا ہوں۔ ہم یہ بات دیکھیں گے کہ صلاۃ جو ہے، صلاۃ کا لفظ جو اللہ تعالیٰ نے استعمال کرا ہے دیگر اور سورہ احزاب کی آیت میں آتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی اللہ، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے صلاۃ کا جملہ استعمال کیا ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کے فرماتا ہے کہ میں تم پر بھی صلاۃ بھیجتا ہوں۔ تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ، اور یہاں پر تم مسلمانوں پہ صلاۃ سے مراد کیا ہے؟ تو اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت مولانا صدیق دیندار چند بسر صاحب قبلہ فرماتے ہیں صلاۃ کے معنوں میں، صلاۃ کے معنی ہیں دعا، فنا اور شاباش، اور کثرت سے نماز ہی کے لیے آیا ہے۔ اور جب لفظ محمد پہ صلاۃ آتا ہے تو تبلیغ میں تائید کا معنی ہوگا۔ تو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو صلاۃ نازل کی ہے، اور مسلمانوں کو حکم ہے، ایمان والوں سے حکم ہے کہ تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ بھیجو۔ تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب تم صلاۃ بھیجتے ہو، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب صلاۃ آتا ہے، یعنی تبلیغ میں تائید کے معنی ہوگا۔ یعنی یہ بتا رہا ہے اللہ کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جس دین کی تبلیغ کرتے ہیں، اس دین کی میں تائید کرتا ہوں۔ جیسا کہ اور ایک جگہ آیا ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، وکفی باللہ شہیدا، اللہ کافی ہے اس چیز کے لیے۔ اللہ بولتا ہے میں شہادت دیتا ہوں اس بات پر، تو اللہ تعالیٰ وہاں پر شہادت دے رہا ہے، گواہی دے رہا ہے، بولا میں کافی ہوں اس دین کے لیے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو جس دین کو لائے ہوئے ہیں۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں صلاۃ بھیجتا ہوں جس دین کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ تو ایمان والوں سے بھی مخاطب ہو کر کے فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم بھی اس وجود پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر صلاۃ بھیجو۔ صلاۃ سے مراد کیا ہے؟ صلاۃ سے یعنی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے کھڑے ہو چکے ہو، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھڑے ہوئے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وقت صحابہ اکرام سے اللہ تعالیٰ فرما رہا تھا کہ اے ایمان والو، تم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، یعنی تبلیغ میں آپ لوگ بھی اس برابر کے تائید میں اس کام میں شامل ہو جانے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کرو۔ ایک معنی میں اس کے معنی جو سلو کے جو معنی ہو رہے، در حقیقت میں یہ معنی ہو رہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ جو مسلمانوں سے فرما رہا کہ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہاں پر اے مسلمانوں، میں تم پر صلاۃ بھیجتا ہوں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ کیسا کمال ہے کہ یہ ایک ایسی نعمت ہے صلاۃ کی۔ ناظرین، میں ایک بہت جو ہے ایک نقطے کی بات آپ لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو صلاۃ کی نعمت سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پر صلاۃ بھیجا ہے۔ یہ بات یاد رکھو، 1,24,000 انبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشتر آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی نبی پر صلاۃ کا جملہ استعمال نہیں کرا، لیکن در حقیقت میں اللہ تعالیٰ صرف سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ،
सलामुन अला यहया इस्तेमाल करा। लेकिन अगर मुसलमानों की बात आती है तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों से मुखातिब होकर अल्लाह ताला फरमाता है हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम, तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है? यानी ये बात इससे साबित होती है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पेशतर जितने भी अदियान आए थे, या ना तो उन नबियों पर ना तो उनकी कौमों पर अल्लाह ताला ने सलात भेजा, बल्कि जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन कामिल आया, दीन अकमल आया, तो अल्लाह ताला ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी सलात नाजिल की। उसके साथ साथ मुसलमानों के ऊपर जो हुज़ूर अल्लाह ने जो यहाँ पर हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम जो भेजा है, अल्लाह ताला ने तुम पर जो सलात भेजा है, और यहाँ तक कि यह फरमाता है अल्लाह ताला मैं तुम पर मलाइका भी नाजिल करता हूँ। अगर तुम जो है ज़ाहिरा तौर पर अल्लाह को, मलाइकाओं को अगर अल्लाह से जो है आजिज़ी करेंगे और यहाँ तो अल्लाह को पुकारेंगे कि अल्लाह ताला मलाइका नाजिल कर, तुम्हारी बीमारियों से, तुम्हारी दुनियावी जो ख्वाहिशात में जो तुम पड़े हुए, दुनियावी तुम्हारी तलबगारों में अगर तुम अल्लाह को तलाश कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला तुमको जो है मलाइकों को नाजिल नहीं करता। अल्लाह ताला मलाइका को कब मुसलमानों पर नाजिल करता है? अल्लाह ताला उस वक्त मुसलमानों पर मलाइका नाजिल करता है जब तुम लोगों को जुल्मत से नूर की तरफ निकालते हैं। तो जुल्मत क्या है? जुल्मत दर हकीकत में अंधेरा है, वो दीगर अदियान है, लेकिन दीन इस्लाम जो है वो नूर है। जब तुम नूर की तरफ लाते हो, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कौमों को लेके आते हो, उस वक्त अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं तुम पर सलात भेजता हूँ। यानी और एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि जब तुम जो है नमाज पढ़ते हो तो अल्लाह ताला तुम्हारे साथ नमाज नहीं पढ़ता, जब तुम रोजा रखते हो तो अल्लाह ताला तुम्हारे साथ भूखे नहीं रहता, जब तुम जो है ज़कात देते हो अल्लाह ताला तुम्हारे साथ ज़कात नहीं देता। लेकिन मुसलमानों से अल्लाह ताला ने मुखातिब होकर फरमाया जब तुम अल्लाह की राह में यानी दीन इस्लाम की तबलीग के लिए निकलते हो या दीन इस्लाम के लिए किसी जंग में शरीक होते हो, तो अल्लाह ताला वहां पर फरमाता है मैं तुम पे बराबर का शरीक हूँ। यानी जब तुम रेत फेंकते हो तो तुम नहीं फेंकते बल्कि मैं फेंकता हूँ, जब तुम तीर चलाते हो बल्कि तुम नहीं फेंकते हो तो मैं फेंकता हूँ, यहाँ तक कि जब तुम कत्ल करते हो तो तुम कत्ल नहीं करके बल्कि मैं कत्ल करता हूँ। ऐसा ही मामला यहाँ पर जो अल्लाह ताला फरमाता है हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकती लियुखरिजुकुम मिनज़-ज़ुलुमाति इलन-नूर, से मुराद ये है कि अल्लाह ताला जुल्मत से तुमको निकाल कर, पहले तो तुम एक नूर में है, यानी तुम इस्लाम दर हकीकत एक नूर है, लेकिन जब ये नूर में दाखिल करने के लिए तुम निकलते हो लोगों को जुल्मत से निकालने के लिए, तो अल्लाह ताला वैसे ही तबलीग मैदान में जब तबलीग में जाते हो तो अल्लाह ताला उसी वक्तों में मलाइका और जो है सलात तुम यानी तुम्हारी तबलीग में अल्लाह ताला बराबर का तुम्हारा शरीक है और तुम्हारी तायीद कर रहा है। यही इसकी हकीकत है। इस बात को आज समझने की जरूरत है। अल्लाह ताला तुम पर सलात क्यों नाजिल किया है? सलात से मुराद यही है फना, दुआ और शाबाश और कसरत से नमाजी के लिए आया। जब लफ्ज़ मोहम्मद पे सलात आता है तो तबलीग में तायीद के माना होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यहाँ पर जो अल्लाह ताला तुम पर सलात भेज रहा है दर हकीकत में वो ये सलात है कि जो तुम तमाम अंबिया इकराम के मसील हो। तुम एक मुसलमान जो है तमाम अंबिया इकराम को अपने क़ल्ब में जमा करके जब ईसाइयों में जाता है तो वो ईसा अलैहिस्सलाम की सूरत, ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात को लेकर जब ईसाइयों में जाता है तो वो ईसा अलैहिस्सलाम की जो है तबलीग, जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईसाइयों में जाकर के मनवाता है तो ये वहाँ से साबित होता है कि ये जो है ईसा अलैहिस्सलाम को अपने दिल में बिठाकर उन ईसाइयों के पास जाकर के हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग ज़ाहिर कर रहा है। यही मामला आज से पेशतर सहाबा इकराम की 1400 साल पेशतर हमने देखा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अपने मुत्तबईन के यहाँ सहाबा इकराम से मुखातिब होकर फरमाया कि मा मिन नबीय्यिन इल्ला लहू नज़ीरुन मिन उम्मती, ऐसा कोई नबी नहीं छोटा जिसकी नज़ीर मेरी उम्मत में ना हो। यानी रखे सोहबत में नबियों को रसूल अल्लाह ने अपनी उम्मत को पकड़ लाना सिखाया। अच्छा, यानी आप फरमाते हैं कि अगर कोई इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखना चाहता है तो आओ मेरी उम्मत में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को देखो। अगर तुमने कोई ईसा अलैहिस्सलाम को देखना चाहता है तो आओ मेरी उम्मत में हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को देखो। ऐसा ही हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐसा कोई नबी नहीं छोटा जो मेरी उम्मत में जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। इसी तरीके से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया इकराम को अपनी उम्मत में जमा करके उनकी कौमों को पकड़ लेने की हिदायतें दी और जो उनको पकड़ लेने का एक गुण सिखाया। इसी तरीके से यही बात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन इस्लाम के लिए जब एक मुसलमान निकलता है तो अल्लाह ताला वहां पर फरमाता है एक मुसलमान है उम्मती मैं तेरे पर मलाइका भी नाजिल करता हूं और जो है तेरे पर जो है सलात भी भेजता हूं, महज तेरा मकसद फिरके वाराना ख्यालात को हटा करके। मैं और एक बात आपको वजाहत बयान करते हुए चलूं, अगर तुम फिरके की तबलीग करते हो या नहीं तो फिर फिरके को मनवाने के लिए अगर किसी भी जंग करते हो, आज देखेंगे आलम इस्लाम में अगर आप देखेंगे तो महज जो है मुसलमान आपस में इख्तिलाफात में पड़े हुए हैं और ये महज दूसरे के ऊपर गालिब आना चाहते हो। वो फिरके अपने फिरके की तालीमात को गालिब करना चाहता है, महज अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए वो लोग नहीं निकले हुए, ना तो वो लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। इसी वजह से जब ये वो
लोग फिरके में मुक़य्यद है तो इनसे रूह का कोई ताल्लुक नहीं है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते लैसु मिन्नी वलस्तु मिन्हुम, मैं उनमें हूँ ना उनसे मेरे से उनका कोई ताल्लुक है। यही मामला है कि फ़िरक़े वाराना अगर ख़यालात में आप रह करके, फ़िरक़ा वाराना तबलीग के ख़यालात में अगर आप रह करके अगर ये फ़िरक़ों की तबलीग करेंगे और फ़िरक़े को गालिब करना चाहे तो आप नहीं कर सकते। यही मामला यहाँ पर ज़ुल्मत से नूर की तरफ यानी फ़िरक़ों के इख्तिलाफ़ात को हटा करके महज आप एक प्लेटफॉर्म पे महज अल्लाह के दीन को लेकर के अगर आप निकलेंगे तो अल्लाह ताला बराबर तुमको जो है दूसरे कौमों पर, मलाइका भी आज यही मामला है कि मुसलमान उठा करके दुआ कर रहे हैं, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पर गालिब आने के लिए दुआएं कर रहा है और फरमा रहा है कि अल्लाह ताला मुझे पर मलाइका को नाजिल कर। तारीख़ ने ये कहीं पर भी नहीं देखा जब सहाबा इकराम आपसी इख्तिलाफ़ात में किसी मसले में लड़े तो अल्लाह ताला ने किसी भी एक की मदद करके इन्हें फरमाया कि मलाइका उन पर नाजिल करके ये नहीं, यहाँ पर किसी की भी एक की तायीद नहीं की, अल्लाह ने वहाँ पर खामोशी इख्तियार की। यही मामला अल्लाह जो है ताक़यामत अल्लाह को एक तर्ज देना था, दुनिया को एक नसीहत देना था कि तुम आपस में इख्तिलाफ़ात में पढ़ोगे तो अल्लाह ताला की नुसरत और जो है मदद वहाँ पर नहीं आती। यही जुल्मत, यही अगर तुमको अगर अल्लाह की तरफ से मलाइका को नाजिल करना है तो तुम्हारा जो है जद्दोजहद तुम्हारी गैर अक़वाम होना चाहिए, दीन इस्लाम तुम्हारे लिए मकसद होना चाहिए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।